Welcome viewers, you're watching To The Point. I am Preet Choudhry. Well, Sadhvi Pragya Thakur, who is an MP from the Bharatiya Janata Party representing the constituency of Bhopal, made a hate speech. She's no stranger to hate speeches. She made one yet again. This one was in Shimoga in Karnataka. Lots of complaints were filed, but till now, viewers, there's been no action. Let's put this in context of what the Supreme Court said just a few months ago, where the Supreme Court, the top legal body in the country, put on record that state governments and authorities need to, and to underline, need to take suo motu cognizance and action even if complaints are not filed in hate speeches. Till now, there is no action that has been taken against Pragya Thakur. स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। Speaking at an event in Shimoga district, Karnataka, BJP MP Pragya Thakur made a call to arms. Without naming a community, her insinuations were clear. लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। Pragya Thakur's remarks triggered a political storm. प्रज्ञा जी सांसद हैं भोपाल से। ये वो हैं जिन पे देशद्रोह का मुकदमा चला, चार्जशीट लगी है। ये तो तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर भड़काने के लिए समुदायों को कार्रवाई की जानी चाहिए। Shock and anger from civil society. प्रज्ञा ठाकुर जी एक टेरर अक्यूज्ड है और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने कोई विवादित बयान दिया है। शिमोगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है, जिसमें मैंने कल जो उनका बयान था शिमोगा के अंदर, जो उनका भाषण था, जिसके अंदर उन्होंने एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया, उसके खिलाफ मैंने सेक्शन 153A, 153B, 295A, 268 और अन्य धाराओं के नीचे पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है। While many complaints have been filed against the repeat offender Pragya Thakur, no action has been taken till now. This in light of the recent developments where the Supreme Court minced no words in expressing its concern over the issue of hate speech in the country. Importantly, the courts have directed that state governments should take suo motu action against any hate speech crime without waiting for any complaint. Pragya Thakur, and BJP MP from Bhopal, has been the main protagonist in many a hate speech sagas. Her scandalous comments on Mahatma Gandhi's assassin Nathuram Godse, labeling him a patriot, even made the Prime Minister Narendra Modi say he will never be able to forgive Thakur. While the BJP remains mum on their MP's latest tirade, the wait now for the Karnataka police to take action as per the apex court directions. Till now, more than 24 hours, there has been none. Bureau Report, India Today. All right, viewers, let's cut across right now to our guests this evening. Till now, there has absolutely been no action against Sadhvi Pragya Thakur, who represents Bhopal, is a BJP MP, neither from the party nor the Karnataka police. This despite the Supreme Court clear ruling which suggests that state governments and authorities need to suo motu take action against hate speech even if there is no complaint. Joining me is Swami Chakrapani, President Hindu Mahasabha. We have Dr. Taslim Ahmad Rahmani, President Muslim Political Council of India as well. We are going to be joined by Shankar Shekhar Jha. He's an advocate, Supreme Court, who's going to break down exactly what the Supreme Court stand has been on hate speeches. I want to connect first to Swami Chakrapani. Chakrapani ji, आपको लगता नहीं है कि जो प्रज्ञा ठाकुर हैं, उन्होंने जो बयान दिया विवादित तो है, पर एक हेट स्पीच के दायरे में आता है?
प्रीति जी देखिए, साध्वी जी ने जो बोला है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने, वो एक सांसद के साथ एक साध्वी भी है, एक जिम्मेदार नागरिक है और सनातनी है। तो इसलिए आप देखो जिस प्रकार से आए दिन जिहादियों के द्वारा बेटियों की 35 टुकड़े 50 टुकड़े किए जाने की जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, हमारी बहन बेटियां जिस प्रकार से असुरक्षित है, हिंदू बहन बेटियां, तो उस समय कोई भी जागरूक इंसान को, हमारा संविधान भी कहता है कि अपनी आत्मरक्षा का अधिकार आपको है, तो अगर उस पर उन्होंने एक सलाह दे दिया, एक हिंदुओं को राय दे दिया, तो इसमें इतना हंगामा करने की आवश्यकता नहीं थी प्रीति जी। क्योंकि आप देखो कि किस प्रकार से बेटियों की सरेआम राजधानी में 35 टुकड़े कर दिए गए, झारखंड में 50 टुकड़े जिहादियों ने कर दिया, और रोज 2 घटनाएं हो रही है जो आपके चैनलों के माध्यम से जो पता चल रहा है। तो ये इन स्थितियों में अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हमारे घर की बेटी बहनें अगर जागरूक नहीं होगी तो आखिर कब तक अपनी जान गंवाती रहेंगी। तो उन्होंने ऐसा कोई गलत नहीं बोला जो असंवैधानिक हो, जो हेट स्पीच है। इसमें हेट स्पीच क्या है भाई? अपनी अगर आत्मरक्षा की बात कोई प्रीति जी करता है और समाज का जो अगुवा वो बात बता रहा है कि भाई जागरूक होना पड़ेगा, तो इसमें हेट स्पीच क्या? इसका मतलब कि आप जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, कोई कितना भी उत्पीड़न करते रहे, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। उत्पीड़न के खिलाफ तो हमें जागरूक करना होगा समाज को, और जिहादियों के खिलाफ हमें उठ खड़ा। ये थोड़े कह रहे कि चक्कू लेकर के जाओ, किसी को बेकसूरों को मारते जाओ, या चक्कू लेकर इस्तेमाल गलत जगह करो, ऐसा नहीं है ना। उन्होंने एक तरह से अपनी आत्मरक्षा की बात की है, अपने लिए सशक्त रहने की बात की है, अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की अगर बात करना कोई भी असंवैधानिक और गलत नहीं है। चक्रपाणी जी, आपको लगता है कि जो प्रज्ञा ठाकुर ने बोला है कि जो सब्जी काटने का औजार है उसको बिल्कुल तीखा शार्प पैना कर कर अपने पास रखा जाए, ये वक्त बैठ के देखने का नहीं है, ये वक्त एक्शन लेने का है, ये आपको लगता है सेल्फ डिफेंस की बात है, या आपको लगता है कि ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बोला है उन्होंने? जी, अपने आप को सबको सुरक्षित रखने की बात है। हर समाज के हर जागरूक को घरों में आप देखिए किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, ये कोई गलत बात नहीं है। और सब्जी काटने वाली अगर चक्कू अगर तेजधार नहीं रखेंगे तो उसका उपयोग क्या होगा? उसका उपयोग तो तभी है ना जब उसके धारदार हो, जब उस पे हमें जरूरी है कि हमारी सब्जी काटने भी काम आए। चक्रपाणी जी, जब वो कहती हैं कि वही चाकू से जो ये लोग हैं अगर सब्जी कटेगी तो उनका मुंह और गला भी कटेगा, आपको क्या जो कानून व्यवस्था है कंट्री में, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उस पर विश्वास नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज होती है, कोई विश्वास नहीं है। लेकिन प्रीति जी सरकार पे सब पे विश्वास है, पुलिस पे विश्वास है, अब एजेंसियों पे विश्वास है, लेकिन अगर श्रद्धा अगर जो जागरूक होती, अगर उसके पास ये सब्जी काटने वाले जोरदार अगर हथियार होती तो शायद उस जिहादी के चंगुल से 35 टुकड़े अपना नहीं होने देती, और निश्चित रूप से उसके पहले उससे निपट चुकी होती या उससे भाग चुकी होती उसको जख्मी करके। लेकिन शायद उसने ऐसा नहीं किया, उस पर अंधविश्वास किया, जिसकी वजह से उसने धोखे से गला ले दिया। कन्हैया कुमार का देखिए किस प्रकार से जिहादियों ने पीछे से मुड़ करके मारा। देखिए कहां तक जो 35 टुकड़े कर रहा है उस पर डिबेट होना चाहिए कि कितनी जघन्यता से हत्या की, कहां तक जो कन्हैया कुमार को 2 लोगों ने जाके कपड़े के नाम पे धोखे से मारा, सुनिए होनी चाहिए। तो चक्रपाणी जी, आप एक चीज एक बात का जवाब दीजिए, तो ये किसके लिए वार्निंग है? क्योंकि जो श्रद्धा और आफताब के साथ हुआ उसके बाद तो जहां तक हमारी रिसर्च कहती है 7 और ऐसे केसेस हुए हैं कि हिंदू ने हिंदू के टुकड़े करके, चाहे वो उनकी बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, या गला रेत दिया या उसके टुकड़े कर दिए। तो ये क्या सभी के लिए यही होना चाहिए कि सबको एक तेज तरार चाकू रखना चाहिए जो सब्जी काटे तो काटे पर मुंह और गला भी काटे, या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है? क्योंकि देखिए हमें केसेस तो हिंदुओं के साथ भी बहुत हुए हैं। उसके बाद देखिए सवाल इस बात का है कि हमें आत्मरक्षा करनी होगी, चाहे हमारा शोषण कोई भी करे। ये जिहादियों की बात अलग है, लेकिन घर में भी अगर कोई उत्पीड़न करता है कम से कम उसे हम रोके, हम अपनी आत्मरक्षा करें। और जिहादी तो आप देखिए सरेआम किस प्रकार से मार रहे हैं। 1-2 आप 5-6 तो हिंदुओं की नहीं, लाखों जिहादियों ने हमारे हिंदू बेटी और बहनों को किस प्रकार से बेरहमी से मार रहे हैं और वर्षों से काट रहे हैं और लव जिहाद कर रहे हैं। ये किसी से भूला हुआ थोड़े है। अगर वो आत्मरक्षा करना जानती तो शायद हमारे उन हिंदू बेटी बहनों के साथ इस प्रकार चक्रपाणी जी, ये आपका जो बयान है,
जैसे मैं आई जस्ट ब्रिंग इन डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी ऑल्सो इन दिस कॉन्वर्सेशन, बस एक बार कहूंगी तो ये सारी बहू बेटियों के लिए है, फिर चाहे वो मुसलमान हो या चाहे हिंदू हो, हैं? नहीं, आत्मरक्षा तो हर व्यक्ति को करना अधिकार है ना, संविधान हमें राइट देता है। तो इसलिए वो सर संविधान हमें राइट नहीं है, बिल्कुल सर देखिए, हमें स्वामी चक्रपाणी जी, कोई भी दरिंदा अगर है, स्वामी चक्रपाणी जी, संविधान आपको राइट नहीं देता कि आप एक चाकू रखें और आप उसका इस्तेमाल करें सब्जी के अलावा किसी के मुंह पे या किसी के गले पे, ये आपको संविधान अधिकार नहीं देता है। 6 इंच की ना 6 इंच की चाकू तक रखने का अधिकार है जो सब्जी काटे जाते हैं। सब्जी काटने के चक्कू तो रखा ही जा सकता है। अरे लोग तो 47 रख रहे हैं, ये जिहादी मदरसों से तो मदरसों में तो बम बारूद और 47 बरामद हो रहा है। एक बार धैर्य बांधिए, क्योंकि मैं आपको वो जो कहा है ना, जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो कहा है, मैं आपको वो सुनवाऊंगी जरूर, क्योंकि उन्होंने जो चाकू घर पे रखो वो सब्जियों के लिए नहीं रखो, वो कहा है लोगों के मुंह और गला काटने के लिए। अब वो कौन लोग हैं, कौन जिहादी हैं, वो आप बेहतर जाने या कोई और बेहतर जाने, पर ये असंवैधानिक है। पर आई वांट टू ब्रिंग इन डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी ऑल्सो इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। मिस्टर रहमानी, as what your counterpart in this debate suggests, that it is not to rain mayhem on a particular community, this is only for self-defense. No, actually this is the crux point. Right to private protection. You see, our country is the only country which has a right to private protection, not the self-protection, which is a very, very potential law. But it is for the every citizen of the country, for 140 crore people of the country. It's not about the Hindus, Muslims, Sikhs, and Christians, etc. But when you name one specific community, that means you are trying to pitch one community against the other community. That's the real crux of the issue. As far as the Shraddha is concerned or the Nirbhaya is concerned, for us, there is no difference between the Shraddha, Nirbhaya, Bilqis or whosoever. We take them as an Indian citizen. We want everybody to be protected in the country. And another crime she has committed, she has tried to become a moral police while she advises our young boys and girls not to pursue for a modern education, to avoid the love jihad. You see, Preeti ji, I want to say very openly, jihad is a very, very sacred word mentioned in the Holy Quran. And it is as equal to as Dharam Yudh. Dharam Yudh is a Sanskrit or Hindi word, and jihad is the Arabic synonym. And it is against the evil. So when we use this word for against any other community, that means we are trying to wedge a void between between the two countries, and we want a direct fight, disharmony in the country. But okay, but Mr. Taslim Rahmani, the fact is, I take it as an anti-national, okay, anti-national kind of statement. You are elucidating that the fact that the word jihad is sacred, but of late, in terms of, and I'm not just talking about a certain set which wants to use the word jihad for their ulterior motives to demonize a community. But sir, the word jihad has openly also been used to demonize your own community by your own. Yes, this is true, and that's why I said those people must be condemned. Whosoever is taking the name, whether the Muslim themselves or any non-Muslim, if they are misusing this sacred term, I'm calling it's a sacred term being misused by so many people, including Muslims. Okay. And they must have to be stopped, and we are responsible. I take the responsibility that we have to stop them. Whether they are Muslim or non-Muslim. Okay, stay with me. No, I want to cut across to Shashank Shekhar Jha. Mr. Jha, what is it that the Supreme Court view has been when it comes down to hate speeches? Because as per the last direction, that state governments, authorities don't need a complaint to take suo motu cognizance and take action against hate speech. In this case, the Karnataka police is culpable.
Namaste Preeti ji and your viewers. I guess Preeti ji, the law is very clear as far as Supreme Court's direction is concerned, or for that point IPC is concerned. No one, irrespective of their background and their motive, can make any statement which may cause law and order situation in this country. Now, without going into a particular case or scenario, this has been cleared by multiple High Court and Supreme Court judgment. In fact, recently, which the Supreme Court judgment you are talking about, Supreme Court has clearly stated that state missionary must lodge FIR in case a suo motu take cognizance in cases where there are inflammatory statements made. In fact, a fellow friend from Congress, Tehseen Poonawalla, has moved to Supreme Court, and there is a specific guidelines in the name of Tehseen Poonawalla versus Union of India, where there are multiple guidelines as with regards to curbing the inflammable speeches. But my point is not that. There is one more thing which we need to be looked upon. If say statement 1 is wrong, then statement 2 is also wrong. So I guess we should not also differentiate between those statements. If a parliamentarian is saying something in which we think that it is wrong and she must be booked, then there are statements which has also caused to beheading of many others. So I guess every statement in a civilized society which may cause law and order situation must be condemned and must be booked. All right, let's just take quick closing statements from both our panelists. Chakrapani ji, आप अभी जो आपने जो प्रतिक्रिया दी, जी, I'll come back to you, Mr. Rahmani. Just give me 1 minute. I'll take closing statements from the both of you. Chakrapani ji, जो आपने अभी अपनी प्रतिक्रिया दी, तो फिर इसमें तो कहते हैं ना अंग्रेजी में, an eye for an eye will make everybody blind. और इसमें आपको लगता नहीं है कि अगर कर्नाटका पुलिस को एक्शन नहीं लेना चाहिए, जो भाजपा है उनको भी तो एक्शन लेना चाहिए? कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही बोला था, जब इन्हीं नेता ने जब गॉडसे के बारे में बोला था, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा, कि वो एक पेट्रियट थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला था कि दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी की हर बातें ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। वैचारिक मतभेद तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब वो नहीं मानते, नहीं माने, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उसमें भी कोई गलत नहीं कहा। और नाथूराम गोडसे और गांधी पे डिबेट होना चाहिए। आखिर डिबेट क्यों नहीं होता भाई? आखिर हमेशा जो चीजें जो हमारे देश का इतना विभाजन हुआ, जिसके वजह से लाखों करोड़ों हिंदू और मुसलमान दोनों मरे, हम और उसकी पीड़ा से कोई हथियार उठा लेता है तो उसको सीधे सदियों तक गाली देते रहना, खलनायक साबित करता नहीं, हमें नहीं लगता ठीक है। दूसरी, इस पे डिबेट होना चाहिए कि गांधी और गोडसे की डिबेट होना चाहिए भारत में। और आज भी सर्वे कराइए तो ऐसा नहीं है, बहुमत गोडसे के साथ भी है। दूसरी बात यह है कि रहमानी साहब कह रहे थे कि धर्म युद्ध, सुन लीजिए, नहीं देखिए सर, ये जो आप कह रहे हैं ना, आप जो अभी कह रहे हैं, ये भी बॉर्डर लाइन हेट स्पीच ही है। अगर आप गांधी जी के किलर को यहाँ पर बैठ के कहेंगे कि इंडिया में आप सर्वे करा लीजिए, सेंटिमेंट गॉडसे के साथ है, मैं ये नहीं मानती, और मैं आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं यूज करने दूंगी। सर माफी चाहती हूँ, ये प्लेटफॉर्म नहीं यूज करने दूंगी। रहमानी जी क्लोजिंग कमेंट। प्रीति जी, व्हाट अ फन ऑफ यू, प्रीति जी, नहीं सर, ये प्लेटफॉर्म बताना चाहता हूँ, whenever courts must take a cognizance of such crimes. रामानी जी, आपको बोलना ना, जब बोलने की बारी आई बीच में क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हो? सुनिए मेरी बात, रामानी जी बीच, रामानी जी काम कराइए पहले। मैं आप ही को बोल रही हूँ सर, अगर आप यहाँ पर बैठकर बोलेंगे कि एक सर्वे कराइए, यहाँ पर बहुत लोग गॉडसे के साथ हैं, ये बॉर्डर लाइन हेट स्पीच होगी सर, और मैं आपको ये प्लेटफॉर्म उसके लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। सर गलत बातें नहीं करने, बोलने तो दो ना, बात भी तो सुनो, बोलिए बात भी तो सुनो मेरी ना पूरी। सर आपने जो बोला उसी पे बोल रही हूं। कोई भी सुन लीजिए, हाँ तो मेरे को जवाब भी तो देने दीजिए ना। हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता, हम संविधान का राज्य है। सवाल इस बात का, उन्होंने गोली मारा, इसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन उस जिस परिस्थिति जो कायम हुई, हिंदू मुस्लिम, अरे रुको भाई रामानी जी, उन्होंने एक कम्युनिटी का नाम लेकर रामानी जी को लड़ाने की बात की है। अरे सुनो भाई, दिस इज द हाई टाइम। रामानी जी मेरी बात सुनो, रामानी जी सुनो मेरी बात। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? बीच में हाथ क्यों कर रहे हो? आपने अपना मत रख लिया है। रहमानी जी क्लोजिंग कमेंट्स क्विकली।
नहीं रामानी जी, एक तो आप जो धर्म युद्ध और जिहाद को एक साथ जोड़ रहे हैं, all my courts, धर्म all the अन्याय के खिलाफ है, without considering any caste, color, creed or religion of the Mr. Rahmani for 1 minute. Go ahead, Mr. Rahmani, make your point. This is the high time. I want to make a request to our honorable courts to take the cognizance against each and everybody who is fomenting venom amongst our society, to break the society, take them as the anti-national and बागी की सूरत में उनको treat That would include members of your own community as well, if they do so. Our country is one, united and must remain. Of course, of course. All right. With that, that's why I said, gentlemen, with that, I've come to the end of this debate. I appreciate all three of you for joining us. Ultimately, we're going to continue to ask that one question. Will the Karnataka police take action? Because this is in violation to what the Supreme Court has directed, to take suo motu cognizance even if there are no complaints against hate speeches. In this case, there is not one but multiple complaints as well.